Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope all of you are fine and good. Okay. Students, enjoy the weather. Today weather is very pleasant. Okay, and we are here to start our unit number 3. And before starting our chapter, I want to share a good message. So today's good message is speak in such a way that others love to listen to you. Okay, students, take out your English textbook on page number 28. Take out your English textbook on page number 28, all of you. But before open your book, you have to turn on your video, all of you. बच्चे मैं रोज़ तो नहीं कह सकती आपको, आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लें. वर्दा ज़ुबैर एंड मोहम्मद शायान गुड, फातिमा वकास गुड. आपकी पहले से वीडियो ऑन है, बाकी सब भी ऑन कर लें. एंड टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 28. This is our unit number 3. Yes, all of you बच्चे turn on your video. रेहान, अली अब्बास, मनाहिल, जमीला दाऊद. Okay, open your book on page number 28. The title of the chapter is World of Novels. Okay. Okay, World of Novels. Do you know the meaning of novels? What is a novel? Yes, anyone know what's the meaning of novel? Okay, novel meaning is, write down the meaning on the top of the page. Meaning of novel is a story book. Okay, but you have to write the meaning with pencils. बच्चे don't use pen or your book. Okay, आपने pencil से meanings लिखने हैं. So take out your pencils, sharp your pencils. Write down the meaning of novel. Novel is a story book. Okay, write down the meaning of novel. Novel meaning is a story book. ठीक है. आपके पास नॉवल क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ बुक. ठीक है, इसमें डिफरेंट स्टोरीज होती हैं. कभी नॉवल जो है एक स्टोरी पे बेस्ड करता है, यानी होल बुक इज़ कंसिस्ट ऑफ वन स्टोरी ओनली. और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास नॉवल में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज अवेलेबल होती हैं. ओके, तो नॉवल किसे कहते हैं? इट्स अ स्टोरी बुक. ठीक है. Okay, write down the meaning of novels. Hurry up. Done? Okay, now look at the first paragraph. A present. Do you know what's the meaning of present? Present का मतलब है gift. Okay? So it's a story about a gift. Maybe किसी ने कोई gift किया हो, but किसको किया है? We will find it in the story. Okay, so here the chapter starts. Here's a present for you. Manan, I bought it for you. I hope you like it. Yes, Fatma Waqas, good. Present meaning is gift, okay? So here's a present for you, Manan. Okay, so Manan is a boy and उसको जो है अभी क्या मिला है? एक गिफ्ट मिला है, एक प्रेजेंट मिला है. And someone is saying, I hope you like it. Sad dad. Okay, so his dad gave him a present, a gift. Okay, Manan unwrapped the gift.
राइट द मीनिंग ऑफ अनरैप्ड. अनरैप्ड का मतलब है टू ओपन, खोलना. ठीक है, गिफ्ट को जो है रैप किया हुआ था और उसको फिर अनरैप किया मनान ने जल्दी से, देखने के लिए कि व्हाट इज़ इनसाइड द प्रेजेंट. Write down the meaning of unwrapped. To open, in Urdu it is kholna. Done? Unwrapped, to open, kholna. So, let's find कि क्या था गिफ्ट में. It was a book. It was a book with an interesting title, A Boy from Makkah. Okay, so what was inside the present? Present gift में क्या था? It was a book. अब इस बुक को नॉवल से रिलेट किया हुआ है, यानी ये एक नॉवल होगा. एंड द टाइटल ऑफ दैट नॉवल इज़ अ बॉय फ्रॉम मक्का. ठीक है, ये टाइटल था उस बुक का जो मनान को मिला है एज अ प्रेजेंट, एज अ गिफ्ट. Okay, he gazed at it with joy. Gazed. What's the meaning of gazed? Write down the meaning. Gazed means to look, stare करना, देखना. Okay? Gazed meaning is to look, देखना. Yes, Abdul Bari, good. To look. Write down the meaning. Gazed meaning is to look, देखना. So what happened? अभी मैंने आपको क्या बताया, मनान इज़ अ बॉय हेयर इन द स्टोरी. ठीक है, और आपके पास मनान को एक गिफ्ट मिलता है फ्रॉम हिज डैड साइड. एंड जो वो उसको अनरैप करता है, उसको ओपन करता है. सो व्हाट इज़ देयर इनसाइड? देयर इज़ अ बुक इनसाइड अलॉन्ग विद द टाइटल अ बॉय फ्रॉम मक्का. ओके, एक बुक उस प्रेजेंट में उस गिफ्ट में होती है. एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दैट बुक? अ बॉय फ्रॉम मक्का. ठीक है, सो वो उसको देख रहा होता है. he gazed at that because it's an interesting title. okay, yes, उमामा अली जी. बच्चे, वालेकुम अस्सलाम. यस मैम, मैंने अभी क्लास ज्वाइन. आपने अभी क्लास ज्वाइन की है. ओके, चले मैं आपको बता देती हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं. टुडे वी आर starting our new chapter, that is world of novels on page number 28 of your text book. ठीक है, टेक्स्ट बुक निकाल ले, मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ. ओके, ओके, सो उमामा अली, बच्चे टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 28. ओके, टुडे आवर चैप्टर इज वर्ल्ड ऑफ नॉवेल्स. द टाइटल इज़ ओके. सो इसमें क्या होता है, नॉवल का मतलब मैंने बता चुकी हूँ, इनको आप भी लिख लें. नॉवल मीनिंग इज़ अ स्टोरी बुक. इट इज़ अ स्टोरी बुक. ठीक है, कोई भी जो है स्टोरी बुक को कहते हैं नॉवल. ओके, सो वर्ल्ड ऑफ नॉवेल्स, इसका मतलब है कि नॉवेल्स की दुनिया. ठीक है, यानी स्टोरी बुक्स की दुनिया. टाइटल ये है आपके पास. फिर इसमें क्या होता है, अ बॉय नेम मनान हेयर गॉट अ प्रेजेंट फ्रॉम हिज डैड. और उस गिफ्ट में, प्रेजेंट किसे कहते हैं, गिफ्ट को. उस गिफ्ट में होती है एक बुक एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक बिकॉज द टाइटल से ही लग रहा है. द टाइटल इज़ अ बॉय फ्रॉम मक्का. ओके, अभी हम यहाँ तक हमने पढ़ा है बॉय फ्रॉम मक्का. ही गेज्ड एट इट विद जॉय. ओके, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जॉय? किसी को पता है जॉय किसे कहते हैं? उसने देखा विद जॉय. जॉय किसे कहते हैं? खफा होके देखा है कि खुश होके देखा है? यस, anyone who know the meaning of joy? yes, Ali Abbas जी. बच्चे, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम, जॉय का मीनिंग है enjoying, नहीं, enjoyful. यस, जॉयफुल. इंजॉयफुल इसलिए होता है ना कि बंदा खुश होता है. सो इट्स सिंपल मीनिंग इज़ हैप्पी. गुड अली अब्बास. ओके, सो जॉय का मीनिंग भी अगर किसी को नहीं आता, दे कैन राइट इट डाउन. जॉय मीनिंग इज़ हैप्पी, खुश होना. अच्छा, तो ही गेज्ड एट इट
विद जॉय, वो जो है बहुत खुशी से देखता है, ठीक है, उस बुक को जो उसे मिला है एज अ गिफ्ट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ओह, इट्स जस्ट व्हाट आई वांटेड, अ नॉवल. ओके, इट्स जस्ट व्हाट आई वांटेड, अ नॉवल. वो बच्चा कह रहा है, मनान इज सेइंग हियर कि यस, ये तो वही है जो मैं चाहता था. ही वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ नावल, और उसको गिफ्ट में क्या मिला, सेम जो वो चाहता था, उसको एक नावल मिल गया, ठीक है, स्टोरी बुक मिल गई. आई विल रीड इट एट नाइट. ही इज सेइंग कि आई विल स्टार्ट रीडिंग इट एट नाइट, मैं रात को ये सोते हुए पढ़ूंगा. थैंक यू, यू आर सो काइंड डैड, सैड मनान. ओके, सो मनान इज नाउ थैंकिंग हिज डैड. You're welcome. The novel is indeed very interesting as the author keeps the reader engaged with the life of a young boy. Okay, so his dad is saying कि ये novel जो है indeed is very interesting. नॉवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. क्यों? क्योंकि जो ऑथर, अच्छा ऑथर किसे कहते हैं? ऑथर उसे कहते हैं अ पर्सन हु राइट्स बुक, ठीक है. अब जो नॉवल है वो अब जिसने लिखा होगा, मीन्स जिसने आपके पास लिखा होता है उसको कहते हैं ऑथर. ओके, अ पर्सन हु राइट्स अ बुक, अ स्टोरी, उसको कहते हैं ऑथर. ओके, सो हिज डैड इज सेइंग कि जो ऑथर है, जो लिखने वाला है इस किताब का, तो उसने वो इतने अच्छे तरीके से उसको लिखा हुआ है कि जब एक बंदा उसको रीड करता है, एक इंसान उसको, यस गुड अब्दुल बारी, राइटर, गुड. सो एक इंसान उसको रीड करता है तो वो उससे मतलब उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है, वो इंगेज्ड रहता है. इंगेज्ड का मीनिंग लिख लें, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इंगेज्ड. इन्वॉल्व्ड, मुलव्विस, यानी आप जब एक देखें, जब आप को ये काम अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल मुझे रीडिंग पसंद है, ठीक है, और बुक भी मेरे पास इंटरेस्टिंग होगी, तो जाहिर सी बात है मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा, मैं वो अच्छे से रीड करूँगी, मैं बोर नहीं होंगी. तो दैट इज़ व्हाट हिज डैड इज़ सेइंग कि आपके पास जो ये बुक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और राइटर जो है, ऑथर जो है, उसने वो ऐसे लिखा हुआ है. ओके मनाहिल, यस गुड, इन्वॉल्व्ड. सो राइटर ने वो इस तरीके से लिखा हुआ है, इतने अच्छे इंटरेस्टिंग वे में उसको लिखा हुआ है कि वन हु रीड्स इट आर मच इंगेज्ड विद दैट बुक, ठीक है. उसका डैड जो है वो ये कह रहा है कि जब तुम उसे रीड करोगे तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दैट, तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज वो बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने एक अच्छे तरीके से उसको लिखा हुआ है. डन. Okay, Umama Ali, if you have missed some meanings, you can write it down now. Novel, a storybook, unwrapped, to open, खोलना, gazed, देखना, to look, engaged, involved, मुलव्विस. Okay? Done? चलिए जी, let's move further. Okay, engaged तो रहने, मुलव्विस, involved तो हमने रहने, but with what? With the life of a young boy. अच्छा, वो जो बुक है आपको पता है ना उसका टाइटल क्या? A boy from मक्का. So boy है और उसके from मक्का, एक मक्का से जो है एक मतलब वहाँ का एक बॉय है, वहाँ का एक लड़का है, वहाँ रहता है, ठीक है, उसके बारे में स्टोरी है. एंड शोज़ हाउ अ बॉयज़ फेथ, पेशेंस एंड डेडिकेशन विन हिम सक्सेस थ्रू द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ. ओके, एक बच्चे के बारे में है जो कि जिसका फेथ मीन्स ट्रस्ट, यकीन. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ फेथ, ट्रस्ट, यकीन. पेशेंस, सबर. फेथ, ट्रस्ट, या फिर उर्दू में लिख ले यकीन, पेशेंस, सबर. अच्छा, ये बुक किस चीज़ के बारे में कि एक बच्चा है, उसका यकीन, उसका सब्र, उसकी डेडिकेशंस, उसकी स्ट्रगल्स, उसकी कोशिशें, ठीक है, वो सब जो है उसको सक्सेस की तरफ लेके जाती है. और कैसे लेके जाती है? उसकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल्स यानी बहुत मेहनत, बहुत कोशिश, बहुत यकीन और बहुत सब्र के बाद उसकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है. वी विल फाइंड इन द स्टोरी कि कैसे होती है उसकी लाइफ अच्छी और क्या स्ट्रगल्स उसने की है, क्या कोशिशें उसने की हैं. ओके, डन विद द मीनिंग ऑफ फेथ एंड पेशेंस. फेथ मीन्स ट्रस्ट, यकीन. पेशेंस मीन्स सब्र. ओके.
That's my understanding. Read it and tell me what you think of it. Okay, his dad is saying कि ये तो मेरी सोच ऐसी है कि ये स्टोरी इस तरह की है, ठीक है. एक बच्चा है, उसका यकीन, सब्र, उसकी डेडिकेशन यानी उसकी मेहनत, कोशिशें, ठीक है, स्ट्रगल, सब उसको एक सक्सेसफुल इंसान बना देती है. मेरा मानना ये है कि नॉवल इज़ ऑल अबाउट दिस. लेकिन तुम ये रीड करोगे और तुम मुझे बताओगे कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट, ठीक है. कि जब आप इसको रीड करो आप मुझे बताओगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो. ओके, सैड डैड. मनान डिसाइडेड टू रीड द नॉवल विद हिज मॉम एट बेड टाइम. ओके, सो मनान ने क्या डिसाइड किया कि ओके, आई एम गोइंग टू रीड दिस नॉवल एट नाइट एट बेड टाइम. जब मैं सोने जा रहा हूँगा तो मैं अपनी मदर की हेल्प से ये स्टोरी रीड करूँगा कि व्हाट इज़ इनसाइड द स्टोरी. ओके. His mother always helped him with his reading and explained difficult words. उसकी जो मामा है वो उसने हमेशा जो है मनान की हेल्प की है with what? With reading and she always explains the difficult words. Okay? क्योंकि आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो, so जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, या अब जैसे मैं आपको अब यहाँ रीडिंग करवा रही हूँ एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यू आर नोटिंग डाउन द मीनिंग्स. इसी तरह नॉवेल्स में भी क्या होता है, स्टोरी बुक में भी अक्सर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टफ़ होते हैं, जो डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वो आप खुद जो है उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते. सो आपको किसी बड़े की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है. सो मनान इज सेइंग कि मेरी इस काम में हेल्प हमेशा मेरी मामा करती हैं. ओके ओके. बट दैट नाइट हिज मॉम वॉज सिक. ओके, सो सिक का मतलब है इल, बीमार. उसकी जो मदर है वो बीमार है. सो शी कुड नॉट रीड टू हिम. अब वो उसके लिए वो स्टोरी नहीं पढ़ सकती. ही फेल्ट सैड. उसको बहुत बुरा लगा, वो खफा हो गया कि वाई हिज मदर इज़ सिक, कि मतलब वो बीमार है, तो नाउ हाउ आई एम गोना रीड दैट स्टोरी. ओके. ही डिडंट वॉन्ट हिज मदर टू बी सिक. वो नहीं चाहता कि उसकी ममा बीमार हो जाए. कोई भी नहीं चाहता है ना. सब जो है अपनी जो मामा होती है उसको, मतलब उनको जो है वो बीमार देखना नहीं चाहते. ही मिस्ड स्टोरी टाइम विद हिज मॉम. अब उसको तो वो तो यूज टू है, उसको तो आदत हो गई है रोज़ बेड टाइम में स्टोरी सुनने की. सो अब वो मिस कर रहा है कि क्योंकि उसकी मामा बीमार है, सो उसका बेड टाइम पे कोई स्टोरी सुनाने वाला नहीं है. सो ही मिस्ड दैट टाइम. ओके. I can read this novel for you if you like. Who said? Sad dad. Okay, so अब उसके डैड ने कहा कि इट्स ओके, आप खफा मत हो, I can read it also. मैं भी तुम्हारे लिए ये रीड कर सकता हूँ ये स्टोरी, if you like, अगर तुम चाहो तो. ओके. This made मनान happy. So आगे क्या हुआ, मनान जो है इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गया. They went to मनान्स रूम. ठीक है, उन्होंने क्या किया, they both, who, Manan and his dad both went to Manan's room and dad tucked Manan into bed. tucked का मीनिंग लिखें, to put something. अब यहाँ समथिंग तो नहीं है, यहाँ तो मनान की बात हो रही है. तो डैड ने क्या कहा, वो लेकर गया उसको, मनान को अपने कमरे में, अपने रूम में फॉर द स्टोरी. एंड क्या कहा, उसको बोला कि टक मीन्स टू पुट समथिंग, यानी उसको वहाँ रखा, यानी बेड पे उसको बैठने को कहा, उसको खुद या बिठाया. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है. ओके, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ टक्ड, टू पुट समथिंग. यू कैन राइट जस्ट टू पुट. ओके, सिर्फ पुट को भी लिख सकते हैं आप. ओके, मनान इनटू बेड. ओके, डैड told him, I will read the first chapter for you and you have to listen very carefully, then we will discuss it. Dad started reading and Manan listened attentively. He started to read. Okay, so what happened? Dad starting reading the first chapter. Dad is saying I will read the first chapter for you, but मैं तो read कर रहा हूँ, but you have to pay very attention and pay attentively. You have to listen. Attentively का मतलब उर्दू में आप लिख लें ध्यान से. ठीक है, जब देखें आप कोई भी स्टोरी, अब जैसे यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, जो बच्चे अब ध्यान से मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, वो अटेंटिव हैं, वो फ्रेश होके सुन रहे हैं, तो उनको जो है ज़्यादा क्लियर समझ आ रहा होगा एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि लेट आते हैं या जो सुनते नहीं हैं लेक्चर. ठीक है,
ओके तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा जब कोई स्टोरी या कोई रीडिंग होती है उसके लिए आपको अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है. तो मनान इज़ डूइंग द सेम थिंग. His father is going to start the first chapter, okay, of the story and he is listening attentively. Okay, वो बहुत ध्यान से सुन रहा है. Okay, so स्टोरी जो है आपके पास उसका चैप्टर 1 हम कल पढ़ेंगे. ठीक है, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो एंड आपने मस्ट इसको रीड करना है बिकॉज आई विल आस्क क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.